Good morning, students. So today we'll again start the software scope part. Previously, we have seen the what do you mean by the software project planning? What are the objectives of the software project planning? Then we have seen a little bit of glimpse of the software scope. So today, in today's lecture, we will be discussing the scope of the software in detail. Fine. So let's move on to the next slide. Again, I am sharing this slide because I have already explained you the software scope in the previous lecture. But again, I am just to brush up our previous concept. I am explaining again. So the software scope is the first activity in the software project planning is the determination of the software scope. तो सॉफ्टवेयर स्कोप मैंने लास्ट लेक्चर्स में और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सॉफ्टवेयर स्कोप बेसिकली लिमिटेशन है किसी भी एक सॉफ्टवेयर का what are the functions we are using in the software, what are the limitations of the software, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. Function and the performance allocated to the software during system engineering should be accessed to establish a project scope that is unambiguous and ununderstandable at the management and technical levels. ठीक है, तो फंक्शन और परफॉर्मेंस एलोकेट की जाती है सॉफ्टवेयर के ड्यूरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग, जिससे कि उसके अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी हो या कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो उसको हम लोगों को मैनेजमेंट और टेक्निकल लेवल्स को बताना पड़ता है, एस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिससे कि कोई भी अनएम्बिगुअस ना हो और अंडरस्टैंडेबल भी हो. फाइन. सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब द डेटा एंड कंट्रोल टू बी प्रोसेस्ड. ठीक है, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर स्कोप जो होता है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी सॉफ्टवेयर के डेटा को और कंट्रोल को किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, फंक्शन कैसे किया जाएगा, परफॉर्मेंस कैसे की जाएगी, कंस्ट्रेंट कैसे किए जाएंगे, इंटरफेसेस कैसे किए जाएंगे और रिलायबिलिटी क्या होगी. फाइन. Functions described in the statement of scope are evaluated and in some cases refined to provide more details prior to the beginning of the estimation. So we have already discussed in the previous lecture, so let's move on. Now we'll see the software scope, obtaining the information necessary for the scope. So first of all, we have to collect the information which are necessary for the scope. So we'll see that what are the necessary informations are required for the establishing the software scope. The first set of context-free questions focuses on the customer, the overall goals and benefits. फॉर एग्जाम्पल द एनालिस्ट माइट आस्क. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कन्वर्सेशन होता है वो बेसिकली बहुत ही प्रिमिनरी राउंड ऑफ कन्वर्सेशन होता है विद द कस्टमर्स. ठीक है, सबसे पहले अपने को समझना पड़ता है कि वो क्या चीज़ मांग रहे हैं, उनके क्या आउटकम्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. So these are the few questions which we have to ask, which we may have to ask as a system analyst or as a manager, whomsoever the person who is sitting for the meeting. So first question is who is behind the request for this work. So first of all, we have to know who are funders, who are our sponsors. Fine. So what are the and who really wants this software to be done? Who will use the solution? Then we have to ask our end users that which type of end users we are looking for. Like suppose अगर हमें एक ATM का सॉफ्टवेयर बनाना है तो but obvious है कि every common man has to use that software. So we have to make it very simple, very user friendly. And if some softwares that suppose कोई बिग बाजार का है या फिर कोई रिटेल बिजनेस का है या फिर कोई सर्विसिंग का है या कोई एनरोलमेंट कराने का है, तो डेट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो किस तरह के एंड यूजर्स हम लोगों को यूज करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए. व्हाट विल बी द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द सक्सेसफुल सॉल्यूशन. ठीक है, और उसके बाद अपने को उनका एस्टिमेट पूछना है, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक बेनिफिट, वो क्या एस्टिमेशन के साथ साथ वो उससे क्या उसको फायदा मिलने वाला है. ठीक है, फॉर द सक्सेसफुल सॉल्यूशन. Is there another source for the solution? वही historical data. Is there another source? और if you have end users ने अगर कोई previously कोई solution देखा हो और कोई software देखा हो अगर वो उनके पास हो तो वो बता सकते हैं. Fine. So these are the four basic questions which we have to ask, which we might have to ask in the beginning of the conversation. ठीक है, that was the first conversation round. The next set of questions enables the analyst to gain a better understanding of the problem and the customer to voice any perception about a solution.
ठीक है, अब हमें परसेप्शंस देखने हैं कस्टमर के। अभी हम लोगों ने देखा, अभी हमने 4 चीजें पूछी, बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी। अब जो नेक्स्ट राउंड ऑफ कन्वर्सेशन होगा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस क्या होंगे वो हम अभी देखते हैं। हाउ वुड यू कैरेक्टराइज गुड आउटपुट दैट वुड बी जनरेटेड बाय द सक्सेसफुल सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले चीज हमें ये देखनी होगी, हमें कस्टमर से ये पूछना होगा कि आपकी नजर में, आपके परसेप्शन के हिसाब से गुड आउटपुट क्या होना चाहिए किसी भी एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर का। तो किसी भी एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर का जो आउटपुट आएगा आपके मायने में, आपकी नजरों में वो गुड कैसे होगा। ठीक है, तो लेट सपोज के मैंने एक एडिशन ऑफ टू नंबर्स का बनाया है, तो बट ऑब्वियस है कि जब मैं कोई न्यूमेरिकल पार्ट कर रहा हूँ, मैथ्स कर रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन चाहिए पड़ता है मेरे को। लेकिन जब हम अलग अलग तरह के मैनेजमेंट MIS सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आउटपुट हमें किस तरीके का चाहिए, कितने लेवल तक हम आउटपुट को, गुड आउटपुट को कंसिडर कर सकते हैं, ये चीज भी हमें डिस्कस करनी पड़ती है। व्हाट प्रॉब्लम्स विल दिस सॉल्यूशन एड्रेस। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये हमें अपने को कस्टमर को पूछना पड़ेगा। कैन यू शो मी और डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट इन विच द सॉल्यूशन विल बी यूज्ड। अगर हमें कस्टमर को ये भी पूछना पड़ेगा कि अगर उनके पास कोई और दूसरा एनवायरनमेंट है या कोई और सॉफ्टवेयर पे उन्होंने देखा हो जिसमें कि सॉल्यूशन यूज किया जा सकता है, मतलब कोई और प्लेटफॉर्म पे वो करना चाहते हैं, कोई और आईडी पे करना चाहते हैं, तो वो एक जो उनके टेक्निकल हेड हैं या जो उनके कन्वर्सेशन हेड है उनको दिखा सकते हैं। विल एनी स्पेशल परफॉर्मेंस इशू और कंस्ट्रेंट इफेक्ट द वे द सॉल्यूशन इज अप्रोच्ड। या फिर कोई एक स्पेशल परफॉर्मेंस इशू है या कंस्ट्रेंट है जो इसको, जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो पहले फेज में हम लोगों ने पूछ लिया कि भाई इसके पीछे कौन कौन है, क्या फंडिंग रहेगी, किस तरीके का वो आउटकम चाहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आउटकम को लेकर डिस्कस कर लिया कि इस तरह का हमारा आउटपुट आएगा, तो आप इसको सक्सेसफुल मानेंगे या नहीं मानेंगे, या आपका क्या परसेप्शन होगा सॉफ्टवेयर को लेके। फाइन। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब सारा का सारा कन्वर्सेशन होता है, ये मैनेजमेंट टीम करती है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि सॉफ्टवेयर टीम दो तरह की होती है, एक तो मैनेजमेंट टीम होती है, एक टेक्निकल टीम होती है। तो जब मैनेजमेंट टीम सारे के सारा कन्वर्सेशन कर लेती है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कन्वर्सेशन को कंप्लीट कर लेती है, तो मीनवाइल दे आर कम्युनिकेटिंग विद द टेक्निकल टीम्स आल्सो, बिकॉज मैनेजमेंट टीम एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द टेक्निकल टीम एंड द क्लाइंट। ठीक है, तो वॉट एवर द इंफॉर्मेशन दे हैव गैदर्ड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद द कस्टमर, they will uh, discuss it, they will transfer all these information to the technical team so that the software will become as per the requirement. Fine. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर टेक्निकल को ही मैं मैनेजमेंट बना दूँ तो जो मेरा ये ब्रिज वाला पार्ट है तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं, और इसलिए कंपनी भी प्रेफर करती है कि जो टेक्नोक्रेट्स हों वही मैनेजमेंट भी संभालें। फाइन। नाउ द फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चन फोकस ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द मीटिंग। ठीक है, अब ये फाइनल सेट है। Gauss and Winberg call these meta questions and propose the following list. Are you the right person to answer these questions? Are answers official? ठीक है, क्या आप राइट पर्सन है इसको आंसर करने के लिए, और ये जो आप आंसर दे रहे हैं वो ऑफिशियल है क्या। आर माई क्वेश्चंस रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम दैट यू हैव। जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ क्या वो रेलिवेंट हैं फॉर योर प्रॉब्लम। एम आई आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस, क्या मैं ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। कैन एनीवन एल्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या शुड आई आस्क यू एनीथिंग एल्स। ठीक है, so these are the questions which are proposed by Gauss and Winberg, which they called as a meta questions. ठीक है, तो ये these are the set of questions students, so that will be vary from person to person and from software to software and from client to client. You can frame your questions also if you have, लेकिन जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो क्या करना क्या है, तब हम इन क्वेश्चंस को अपना बेस बना के अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर मीटिंग विद द कस्टमर्स, दे आर वी आर नॉट फैमिलियर विद देम, दे आर, ठीक है, वो अलग होते हैं। वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वी आर नॉट हैव अ एक्विटेंस विद ईच अदर। ठीक है, हम जानते नहीं है, तो हम लोगों को फर्स्टली किस तरीके से क्वेश्चन बिल्टअप करना है, कैसे क्वेश्चन पूछने हैं,
ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको हम अपना रेफरेंस बना के, उनको अपना बेस बना के हम आगे कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कन्वर्सेशन वी कैन फ्रेम आर क्वेश्चंस ऑल्सो। ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ हमें यही क्वेश्चंस पूछने हैं जो उसमें दिए गए हैं। दीज क्वेश्चंस आर ओनली यूज फॉर द रेफरेंस। फाइन। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कन्वर्सेशन करना प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कंसर्न, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फर्स्ट फेज इज द प्लानिंग एंड प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन द कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट। तो जितना ज़्यादा अच्छा कन्वर्सेशन होगा, जितना मैं ब्रॉडली पॉइंट्स को कवर कर पाऊंगा, उतना ही अच्छा मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा स्टूडेंट्स। तो इसीलिए कहते हैं कि जब प्लानिंग लेवल पर जो मैनेजरल स्किल वाले लोग होते हैं या जो मैनेजमेंट टीम के लोग होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपीरियंस होल्डर्स हो, ठीक है, उनको पता हो क्या लूप होल्स होने चाहिए या क्या लूप होल्स होते हैं, हमें क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है। अगर मैं इसमें किसी भी एक फ्रेशर बंदे को लगा दूंगा तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम विद मी, ठीक है। तो फॉर दैट वी नीड सम एक्सपीरियंस पर्सन। अगर वो टेक्निकल भी है और उसको मैनेजमेंट भी आता है, दैट विल बी द परफेक्ट मैच फॉर मी एज फार एज इफ आई एम रनिंग माई कंपनी, ठीक है। अगर मैं अपने प्रोस्पेक्ट में बात करूँ तो मैं उन बंदों को या उन बंदियों को लेना पसंद करूंगा जो मैनेजमेंट एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स रखते हैं, ठीक है, और जो एक्सपीरियंस्ड हो एटलीस्ट प्लानिंग लेवल पर। उसके बाद जहाँ पे कोडिंग की बात आती है, जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की पार्ट आती है, वहाँ पे मैं, ठीक है, वहाँ पे मैं कोई भी नॉट वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी ले सकता हूँ। इनफैक्ट मैं कोडर को, मेरे को सिर्फ कोडर चाहिए, आई डोंट वांट हिज डिग्री, ठीक है। तो जितना अच्छा कोड, जितनी ज़्यादा डिग्री होती है उतनी डिमांड हो जाती है सैलरी की। तो जस्ट टू रिड्यूस दैट ओवरहेड, मैं क्या करूँगा कि मैं जो सिंपल कोडर होगा, अगर वो कोई कॉलेज ड्रॉप आउट भी होगा और मेरे लिए अच्छा कोडर है, तो माई पर्पस इज फुलफिल्ड, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि कोडर लेवल पे तो मैं किसी को भी ले लूँ जो अच्छा कोडिंग करता हूँ, बट एट द लेवल ऑफ प्लानिंग और जो एनालिसिस पार्ट जो है, जो मेरे फर्स्ट 3 फेज होते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना, प्लानिंग करना, एनालिसिस करना, उस पार्ट पे मेरे को चाहिए कि मेरे को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज़्यादा मैनेजरल स्किल के बंदे चाहिए, ठीक है। सो बाय दिस आई एंड दिस लेक्चर एंड we have completed the software scope part. In the next lecture we will see the another part of the software project planning. Thank you students.